Good evening. I'm Dr. Archana Sogani and I'm a diabetic foot surgeon working in Jaipur. Today I will just discuss about the basic details about diabetic foot and do's and don'ts mainly, which is the thing which every diabetic patient should follow. And foot में problem हो नहीं हो, लेकिन उसको ये rules अगर हम follow करेंगे तो we will prevent problems. That is my aim, that we must come to a level of preventing problem. तो सबसे पहली बात तो ये है कि if you are a diabetic, then the first thing that you have to do always is to keep your diabetes under control. Do anything to keep your diabetes under control. और फिर पैर की जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम पैरों को ध्यान रखेंगे, लेकिन प्राइमरीली आपको डायबिटीज़ का ध्यान रखना है फ्रॉम द वर्ड गो. As soon as you are diagnosed with diabetes, then keep it under control, do anything for it. I mean, I can repeat it a number of times to emphasize that ये सबसे important काम है diabetics के लिए कि diabetes control में रहनी चाहिए, क्योंकि uncontrolled diabetes में complications are much earlier. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कंट्रोल डायबिटीज़ में कभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, लेकिन वो अगर 25 साल में जाके होंगे तो अनकंट्रोल के 4-5 साल में हो जाएंगे, या कई बार तो पेशेंट को डायग्नोज होता है विद अ कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज ना आप चेक कराते हैं और ना आप ध्यान रखते हैं और यू डोंट सी हाउ योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग टू वर्ड. तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि डायबिटिक फुट प्रॉब्लम से ही डायग्नोज होती है डायबिटीज़, तो विच वी हैव टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल. तो अगर आपके डायबिटीज़ है तो सबसे पहला काम आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रखना. दैट इज़ वन थिंग दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड. अब मैं कोई डायबिटिक्स का मतलब अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपने पैरों का किस तरीके से ध्यान रखना है. आई विल जस्ट एम्फसाइज फ्यू very basic points about it. And again, before starting, we call them the 10 commandments of diabetic foot care. But before starting these 10 commandments, I would like to just emphasize on another point about diabetic foot is कि हमको we have to do our best to prevent problems, and if the problems occur, to prevent amputations. Like it is very well said by a very senior diabetic foot person, Dr. Bal, that an amputated foot with the best of prosthesis, a deformed foot with the best footwear is much better than an amputated foot with the best of prosthesis. So according to Dr. Bal, who is the father of diabetic foot surgery in India, a deformed foot with a good footwear is better than an amputated foot with the best prosthesis. So the length of the foot, length of the limb, if it is maintained, then it is very, very helpful for the patient. And we should not take it like that कि पैर काट के हम बढ़िया सी prosthesis लगा के और मरीज चलेगा, नहीं. Physiotherapy, management of prosthesis and all, they are not easy in a diabetic patient. अगर किसी का पैर कट गया है तो उसका ऑलरेडी हार्ट कमज़ोर है, उसकी ऑलरेडी बाकी चीज़ों में आइज़ में किडनीज़ में प्रॉब्लम आ चुकी हैं, तो with that background it's not very easy to resuscitate the patient once the limb is amputated, a major amputation has been done, and then we start talking about 5-year survival, because the stress on the heart is so much that the patient succumbs to that. So it's always better to have the length of the limb rather than to just amputate easily. So to prevent the amputation, we have to do anything for it. And diabetes management we have already talked. So first point in the 10 commandments, now I'll come to the 10 commandments. तो पहला commandment ये है कि do not walk barefoot. ये हमारे अपने कंट्री में कल्चरल सिस्टम्स भी हैं और स्पिरिचुअल सिस्टम्स भी हैं जिसमें हमें नंगे पैर बहुत चलना पड़ता है. घरों में हम नंगे पैर चलना चाहते हैं, मंदिरों में तो नंगे पैर चलना ही है, लेकिन हम ये कहते हैं एक डायबिटिक को कि नंगे पैर ना चलें.
बिकॉज जो नर्व्स खराब हुई हुई होती हैं उसके कारण उनको वेरिड सेंसेशन होते हैं। कोई कहता है गद्दे जैसा लग रहा है, कोई कहता है लकड़ी टाइप फीलिंग हो रही है, किसी को इडीमा होता है, किसी को कंप्लीट इनसेंसेट फुट होता है। तो विद वेरियस टाइप ऑफ न्यूरोपैथीज, नसें खराब होने की जो वो हैं, उनको हमको उस पैर को एक छोटे बच्चे की जैसे रखना है। लाइक आई ऑलवेज से कि हमें उसको अवेयर के रखना है कि इसमें कोई खराबी आ ना जाए, बिकॉज अगर खराबी आ जाती है तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। घाव भरना और ये सब, दे आर, इट्स नॉट ईजी एज नॉर्मल एज इन अ नॉन डायबिटिक। तो हमको कुछ भी तरीके से चोट को प्रिवेंट करना है, और उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि नंगे पैर नहीं चलना है, क्योंकि आप कहीं भी चोट लग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मेरे पास मरीज आए हैं जिनके मंदिर में जाने से, दोपहर में मंदिरों में हमारे नॉर्मली ये मार्बल के फर्श होता है। गर्मी के मौसम में दोपहर में बहुत गर्म हो जाता है एंड पूरा पैर नीचे से जल जाता है और पता ही नहीं चलता है मरीज को। एंड देन दे कम विद कंप्लीट प्लांटर एस्पेक्ट पे बर्न लेके आता है वो, जो कि गहरा भी होता है और बहुत मुश्किल से फिर हील होता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रहा है जिसके फादर की डेथ हो गई थी, और वो उसका पैर शमशान में जल गया था, बिकॉज वो वहाँ नंगे पैर था और उसका किसी कोयले पे या किसी चीज़ पे पैर पड़ गया होगा, एंड ही बर्न बोथ हिज फीट एंड वी ट्रीटेड हिम, ही इज़ मच बेटर नाउ। बट ये चीज़ प्रिवेंट हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा कमांडमेंट ये है कि हमको अपने पैरों को नज़र में रखना है। किसी भी चीज़ को जिसको संभालना है उसको नज़र में रखना चाहिए। उसकी तरफ से नज़र हमने फेर ली तो वो चीज़ बिगड़ ही जाएगी, कुछ भी हो भले हो। तो वी हैव टू इंस्पेक्ट द फीट डेली। अब क्या क्या चीज़ें देखनी है, अगर हमें इंस्पेक्ट करना है तो क्या नज़र में रखना है उसको, कि कहीं कोई छाला नहीं हो गया हो, कहीं कोई चोट नहीं लग गई हो, क्योंकि कभी आपने जूता पहना और उसके अंदर मिट्टी थी या कोई कांटा था, वो आपके चुभ गया, आपको पता नहीं चला। अगर आप जूता खोल के पैर धो के देखेंगे अपने पैर की तरफ तो आपको दिख जाएगा कि एक चोट लगी हुई है उसमें। तो उसमें कोई चोट लगी हुई हो, कोई खून आया हुआ हो, किसी तरीके की स्मेल अलग तरीके की आ रही हो, या गर्म हो रहा हो, या सूजन ही आ गई हो। अगर सूजन भी आ जाती है और अगर हम अपना वो जूता पहन लेते हैं जो पुराना हमारा नॉर्मल जूता है, वो सूजन आए हुए पैर में पहन लेते हैं तो हमें टाइट पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पैरों को महसूस नहीं होता है और वो घाव हो जाएगा। बिकॉज सूजन आप किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में डालेंगे तो नुकसान करेगा, उस तरीके से नुकसान हो जाता है। कोई टो आगे से कोई फंस जाती है, उसमें नुकसान हो जाता है, या ब्लिस्टर बन जाता है छिलके, या कैसे भी बन जाता है। एक सर्दी के मौसम में जैसे अगर अपन सेक करते हैं तो उससे जल जाते हैं, कभी अलाव के सामने बैठते हैं तो उससे जल जाते हैं। मतलब आई हैव हैड पेशेंट्स जिनको अटेंडेंट ने उनको बोला कि अरे आपका पैर जल रहा है, देन दे रिमूव दैट, एक कोयला आके उनके पैर पे पड़ गया था, उसमें से मोजे के अंदर से पैर भी जल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए आपको अपने पैर को नज़र में रखना, यू हैव टू सी इट एवरी डे, मे बी ट्वाइस अ डे, मे बी मोर देन दैट, जस्ट कीप इट इन योर विजन। सो इंस्पेक्ट द फीट। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज कि हमको कुछ भी उस पर बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत मालिश, हैंडलिंग शुड बी स्मूथ, रफ हैंडलिंग ऑफ द फीट नहीं करनी है। लाइक आई सेड कि बच्चा है, जैसे हम बच्चे को बिल्कुल अधर से रखते हैं, ऐसे ही हमको अपने पैरों को भी बिल्कुल अधर रखना है। तो उसमें हमें कोई गर्म नहीं लगाना है, जैसे कोई सेक कर रहे हैं, हमने कोई हॉट वाटर बॉटल लगाई हो या ठंडा कोई बर्फ़ लगा दिया, कोई पता नहीं कहीं से कोई ट्रीटमेंट होता है कि पहले गर्म करो फिर ठंडा करो पैर से, ये हो जाएगा। वो तो कुछ नहीं करना है, ना गर्म ना ठंडा ना मालिश। मालिश भी अ कंप्लीट नो है, ना मालिश करनी है, ना आपको दबवाने हैं पैर बहुत ज़्यादा भारी हाथ से, हल्का हल्का कर सकते हैं बट नॉट। मतलब फुट क्रीम जो जिसको हम देते हैं उसको अप्लाई करना है, यू डोंट हैव टू मसाज इट, अप्लाई इट। दैट इज़ द वर्ड यूज्ड, अप्लाई नॉट मसाज। तो वो मालिश नहीं है, लगाना ज़रूर है। कोई भी तरीके का हीटिंग पैड हो, कोई जैसे आपके पैरों में दर्द हो रहा हो तो आप दर्द की दवाई लगा रहे हैं तो उसको रगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं ज़्यादा करनी। हल्का सा कुछ लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तेज़ मालिश नहीं होनी चाहिए उसमें। और चौथा पॉइंट ये है कि यू हैव टू यूज़ द करेक्ट फुटवेयर।
Again, I would say this is a very very important aspect of managing diabetic foot, कि हमको पैर का ध्यान रखने के लिए उसमें सही तरीके का जूता पहनना बहुत ज़रूरी है. तो यूज़ द करेक्ट फुटवेयर. अब आपको जो जूता खरीदना है वो आपको मोस्टली हम ये कहते हैं नॉर्मल डायबिटिक्स को कि शाम के वक्त खरीदना चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त आपके पैरों में थोड़ी सी सूजन आई हुई होती है. उस साइज़ का जूता आप ले लीजिए, ताकि कभी छोटा ले लिया और फिर सूजन वाले पैर से पहन लिया तो नुकसान हो जाएगा, और सूजन वाले पैर के साइज़ का जूता लिया हुआ है तो फिर दिन में आपको थोड़ा सा ढीला रहेगा, वो कोई बात नहीं. तो फोर्थ पॉइंट ऑफ डायबिटिक फुट केयर कमांडमेंट्स इज दैट हमको सही तरीके का जूता पहनना चाहिए. यूज़ दी करेक्ट फुटवेयर. अब करेक्ट फुटवेयर का क्या मतलब होता है? बाय स्ट्रक्चर एक फुटवेयर में आगे टो के आगे 4 फुट में इनफ स्पेस होनी चाहिए. इट शुड बी ब्रॉड टोड एंड शुड हैव इनफ रूम फॉर द फुट, ताकि वो नैरो बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसका आगे से, नहीं तो वो पंजा बिल्कुल दब जाता है और कोई ना कोई टो उसमें ख़राब हो जाती है. दूसरी बात यह कि हमको वो जूता शाम के वक्त खरीदना चाहिए, जबकि आपके पैर में नॉर्मल जो भी स्वेलिंग थोड़ी बहुत आती है शाम को वो आ गई हो, एंड उस साइज़ का जूता आप खरीदें. सुबह के टाइम अगर आपने जूता खरीद लिया, शाम को सूजन आ गई, फिर वो जूता पहना तो वो चोट लग सकती है उसमें, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते. तो करेक्ट टाइप ऑफ फुटवेयर, और उसके साथ मोज़ा ज़रूर पहने. मोज़ा पहनना अलाउड है. मोज़े में आपको जो इलास्टिक होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत टाइट इलास्टिक नहीं होनी चाहिए. अगेन फॉर द सेम रीज़न कि जब उसमें सूजन आती है तो वो निशान जो बन जाता है पैरों में, आपने कभी देखा होगा, वो निशान से चोट लग सकती है. और कॉटन के मोज़े पहनने चाहिए ताकि वो नुकसान ना करें पैरों को. अब 5वां पॉइंट ये है कि अगर आपको पैर में कोई दिक्कत हो चुकी है पहले, जैसे कोई घाव हो चुका हो या कोई टो खराब हो गई हो या कभी स्वेलिंग आई हुई हो, तो फिर कोई उंगली टेढ़ी पड़ती हो या कुछ एक डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट अगर है, तो वी शुड वॉक विद एन ऑफलोडिंग मैकेनिज्म, कि उस जगह पे जो जगह खराब हो गई है, डिफॉर्म हो गई है, उस जगह पे वजन नहीं पड़ना चाहिए. सो वी हैव टू टेक अ टेलर मेड फुटवेयर फॉर दैट. So then we can prevent weight falling on that particular part of the foot, because if you walk on that deformity, then you are sure to get an ulcer and you will definitely end up in recurrent problems. मतलब एक बार आपके घाव हुआ, ठीक हो गया, अब आप उस पर चल रहे हैं तो वो घाव दोबारा होगा, और कभी बोन खराब हो जाती है तो then we go in for deeper problems. So to prevent that, you have to offload the part which is deformed. Now 6th point is कि हमको क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए बहुत देर तक. एक तो क्रॉस लेग बैठने से एक पैर दूसरे पैर पे प्रेशर डालता है, तो उसमें ब्लड सप्लाई की कमी आ जाती है. आई मीन देयर इज प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स एंड वो उसमें कमी आ जाती है, तो वो उसके अंदर नुकसान हो जाता है. प्लस एक पॉइंट है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका पैर, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सेंसेशन, आपके पैर में प्रोप्रियोसेप्टिव वो सेंसेशन नहीं है. मतलब आपको नहीं मालूम आपका पैर कहाँ रखा है. वो नॉर्मली जो हम अपना पैर हिला लेते हैं, वो एक डायबिटिक जिसके पैर में महसूस नहीं होता, वो अपना पैर हिलाता नहीं है, जैसा रखा है वैसा रखा रहता है, तो उससे प्रेशर पॉइंट बन जाते हैं, उससे ब्लड सप्लाई में कमी आ जाती है और उससे नुकसान हो जाता है. तो क्रॉस लेग्स नहीं बैठना है, और प्लस रेगुलरली अपने पैर को मूवमेंट करना है, सो दैट द ब्लड सप्लाई इज मेंटेन्ड एंड यू डोंट एंड अप इंजरिंग योरसेल्फ. नाउ 7th पॉइंट इज कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर हमको अपने जूते नहीं खोलने चाहिए. इसकी एक सिचुएशन ये होती है कि हम बस में ट्रैवल करते हैं. बस में ट्रैवल जब हम कर रहे हैं तो हम अपना जूता खोल के पैर आगे वाली सीट के नीचे घुसा देते हैं टू रिलैक्स, कि भाई अभी तो 3 घंटे तक हमको ऐसे ही बैठना है, तो जूता खोल दिया, पैर आगे लंबा कर दिया. अब उसके नीचे कोई कील है, कुछ है, तो आपकी चोट लगी, जो कि आपको पता भी नहीं चला, एंड दैट कैन एंड अप इनटू मेजर प्रॉब्लम्स. ऐसा मतलब एक कांटा चुभ जाए अगर आपको, तो वो आपका पैर कट जाए, इस लेवल तक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है. तो बेस्ट है कि प्रिवेंट करें. इसलिए जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, अननोन प्लेस में हैं, तो अपना जूता नहीं खोलना है हमें.
जूता खोल के लंबा पैर करके आगे पीछे नहीं करना है। बस के अंदर वो अंदर जो गर्म पार्ट होता है इन नॉर्मल बसेस, उसके अंदर कई लोग इंजन के ऊपर अपना पैर रख देते हैं, उससे भी जल जाया करते हैं पैर। तो नेवर टेक ऑफ योर फुटवेयर व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, और कहीं हॉट सरफेस पे और कहीं पे नहीं रखना है। 8वां पॉइंट है कि हमें अपने नाखूनों का बहुत ध्यान रखना है। नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। नाखून भी खराब हो जाते हैं लोगों के। मैं थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं गई हूँ कि क्या होता है डायबिटीज़ के कारण फुट में प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट। लेट अस बी जस्ट ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हमें क्या करना है कुछ भी प्रॉब्लम बचाने के लिए। तो हमें अपने नाखूनों को रेगुलरली ट्रिम करना है। अगर वो मोटे हो रहे हैं तो फिर किसी के पास जाकर उसको ट्रिम कराना है। इन जयपुर वी डोंट हैव पोडियाट्रिस्ट का बहुत ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज यूजुअली पोडियाट्रिस्ट डू। हियर वी डू इट ऑल्सो इन आवर आउटडोर। हम पेशेंट्स के नाखूनों का भी ध्यान रखते हैं। एंड वी हैव अ स्पेशल सेट ऑफ नेल कटर्स एंड पेडिक्योर सेट्स जिसके अंदर हम नेल्स का ध्यान रखते हैं ना। अब जो ये आटन हो जाती है, 9वां पॉइंट ये है कि कई लोगों को आटन हो जाती है, उनको पता है ये आटन हो रही है बिकॉज उस जगह पे से वैसे तो वजन हटना चाहिए, वो वजन हटाते नहीं है, उस पर चलते रहते हैं, वो वहाँ पे कॉन्स हो जाते हैं। उसको हम हिंदी में आटन कहते हैं। कॉन्स हो जाते हैं एंड पीपल कीप रिमूविंग देमसेल्व्स बाय अ ब्लेड विच इज completely not allowed. Self surgery is very very dangerous. If you go deep, if you injure yourself, then you are bound to end up into trouble. तो अपने आप अपनी ब्लेड से होम सर्जरी करके अपने कॉन्स कैलसिस न काटें। प्लीज गो टू अ सर्जन एंड और पोडियाट्रिस्ट इफ यू हैव वन। अब पैरों को धोना है अपने को। ये अब 10वां पॉइंट हो गया हमारा कि हमें अपने पैरों को साफ रखना है, कि रोज़ हमको दिन में 2 बार पानी से, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ पानी, गरम ठंडा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें कोई नमक नहीं मिलाना है, कोई दवाई नहीं मिलानी है, कुछ नहीं करना है। जस्ट नॉर्मल पानी से हमको पैर को दिन में 2 बार धोना है। धो के हम एक अलग फुट ये नैपकिन से पोंछें उसको, उंगलियों के बीच में ऐसे कर करके पोंछें हल्के हाथ से। बट यू मस्ट वाइप द इंटरडिजिटल एरियाज, उसको पोंछें। उसके बाद हम एक फुट क्रीम लगाएं, जैसे मुंह पे क्रीम लगाते हैं ऐसे लगाएं, जो हर जगह लग जाए लेकिन एक्स्ट्रा कहीं नहीं हो। तो दिस इज exercise which you're supposed to do every day, if not once, twice a day, or if not twice actually, at least once a day. You must wash your feet, wipe them, apply foot cream, wear pair of socks and good footwear. घर में भी अगर आपको जो बाथरूम स्लीपर्स हम पहनते हैं उसमें वो क्रॉक्स की आती हैं, या कोई भी और जिसमें ब्रॉड टो होता है, या फ्रंट ओपन अगर हो तो इट शुड बी स्लाइडिंग। ये जो हवाई चप्पलें होती हैं जिनमें नखून अंगूठे का जो वो होता है, वो वाली चप्पलें हम रेकमेंड नहीं करते हैं। सो यू मस्ट वेयर स्लिप ऑन्स रादर देन वो, और एल्स पीछे से बंद होने वाली जूते पहन, मतलब प्लास्टिक वाले ये जो क्रॉक्स आते हैं। तो ये तो हो गए 10 कमांडमेंट्स ऑफ डायबिटिक फुट केयर, जिसके अंदर हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम पैरों को प्रॉब्लम में फंसने से बचाएं। प्रॉब्लम में अगर जैसे ही फंसे हमें थोड़ा भी लगे तो टाइम नष्ट करने से बगैर ही हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास हम हर चीज़ के लिए जाएं। ही विल रेफर यू टू द राइट पर्सन जिसको पास आप आगे प्रॉब्लम के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास आपके खुद के कोई फुट में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा मोबाइल नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। बट बिफोर क्लोजिंग आई वुड से दैट 10 कमांडमेंट्स तो हो गए, ये तो हम मालूम है 10 होते हैं, लेकिन एक डायबिटिक फुट केयर में एक हमने 11th कमांडमेंट कर रखा है, और वो 11th कमांडमेंट ये होता है कि डू नॉट एम्पुटेट। डू नॉट एम्पुटेट एज फार एज यू कैन हेल्प इट, because like I told you earlier, amputation is not the answer to treat the diabetic foot. ये चीज़ मैंने कई लोगों से इंक्लूडिंग डॉक्टर्स इंक्लूडिंग सर्जन्स डिस्कस कर रखी है कि आपने एम्पुटेशन कर दिया, एक प्रोस्थेटिक फुट लगा दिया, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट द फैक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। मैं पेशेंट के लिए रिससिटेशन, रिहैबिलिटेशन, इट्स ऑल अ वेरी बिग एक्सरसाइज जिससे उसके हार्ट पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, और
जनरल बॉडी उसकी नहीं है रेडी इस इतने स्ट्रेस के लिए, एंड ही कैन सकम टू दिस स्ट्रेस। प्लस एक पैर अगर जब मेजर एम्पुटेशन हो जाता है तो दूसरे पैर पे जब पूरा वजन पड़ता है बॉडी का, तो वो दूसरा पैर भी एम्पुटेशन होने के वल्नरेबिलिटी में फंस जाता है। एंड कैन यू इमेजिन अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज विद बोथ फीट एम्पुटेटेड? वेल, आई हैव सीन पेशेंट्स लाइक दैट, बट as much as you can, as far as possible, please do not amputate. So this is a message from me. Thank you so much. Namaskar.